So we move to a new topic, next topic of this chapter, which may be asked in your exam. That is the topic of collision. इसको जरा समझ लो. Collision पे चीजें पूछी जा सकती हैं. Collision का derivation अपने आप में important derivation है, which may be asked in your exam. Collision. अब collision पे बात करने से पहले मुझे एक बात बताओ. Do you know about conservation of linear momentum? You have any idea about that? No, sir. No. Okay. आप एक बात समझिए. सबसे पहली बात तो ये है, सर अगर मान लो if I have one body like this, its mass is m1 and there is another body and its mass is m2. This body is moving with some velocity u1 and this is moving with some velocity u2. ठीक है? Sir, your voice is not clear. My voice is not clear. Now is it clear? No, sir, your voice is still cracking. Wait a minute. ये भी ठीक है. Is it clear now? Anshika, can you hear me now? Sir, yes, but आपकी voice ना echo कर रही है. कर रही है. ऐसे क्यों कर रही है? So this is the best I can do. Thank you. Wait a minute. Hello. Mute. Hello, Anshika. Can you hear me? Hello, yes, sir. So is there any echo? Not now, sir. Is it fine now? Yes, sir. Okay, Anshika. Okay, Anshika. So back to the topic. We were discussing about the conservation of linear momentum. First of all, एक बात तो याद रखो कि linear momentum का मतलब क्या है. तो linear momentum की meaning is mass into velocity. The product of mass and velocity of a body is basically called as linear momentum, right? Now, Yes, sir. the second point is that whenever there is two body or more than two bodies in a system, and if they collide का मतलब यहाँ पर collision भी साथ साथ समझते चलो. Collision का basic मतलब होता है कि if the velocity of one body changes due to another body, that process is called as collision.
अगर एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी की वजह से चेंज हो जाती है तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोलिजन. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ये u1 इज ग्रेटर देन u2, व्हाट विल हैपन? दिस बॉडी a विल कोलाइड विद दिस बॉडी b, है ना? They will come in contact, and after that what will happen? Their velocity will get interchanged or their velocity will change, you can say. तो होता क्या है कि after they came into contact, let's say this body started moving with velocity v1 and this body started moving with velocity v2. Their masses is still m1 and m2. Their velocity has changed because of this collision. ठीक है, तो collision is the process in which the velocity of one body changes due to another body. एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी की वजह से चेंज हो जाए. फॉर एग्जांपल, कोलिजन ऑफ टू व्हीकल्स, कोलिजन ऑफ अ कार, कोलिजन ऑफ बाइक विद कार, ये सब कोलिजन्स हैं. अब बेटा जब कोलिजन होता है बच्चे, तो इसमें जब दो बॉडी आपस में टक्कर करेगी, टकराएगी, तो जब टक्कर होगी, कोलिजन होगा ऐसा, तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि वन बॉडी विल एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी, राइट? एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगी. बट बेटा अगर मैं मान लो कि दो कार का कोलिजन हो गया, द टू कार कोलाइडेड विद ईच अदर, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए, मैं जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूं वो मेरे लिए क्या है? दीज टू कार्स विच आर कोलाइडिंग विद ईच अदर. मुझे बाकी कार से मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ इन दो कार से मतलब है स्पेसिफिकली, जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है. तो ऐसी बॉडीज जिस पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सच कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी इज कंसीडर्ड एज सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज माय सराउंडिंग. ये ऐसा ही कुछ है जैसा आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना? तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब होता यह है कि व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स of the system only and no one is applying any external force from outside the system, इसका मतलब है कि जब दो बॉडी कोलाइड हुई तो they are exerting force on one another by themselves. कोई बाहर से उस पर फोर्स नहीं लगा रहा. तो as long as there is no external force acting on my system, the system that I have considered, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, only the forces are internal, आपस के फोर्स हैं, तब तक मैं ये कह सकता हूं कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड. इसका मतलब कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा इंडिविजुअल बॉडी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिस्टम. सिस्टम मतलब दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं. द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम. इंडिविजुअली तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, बट सिस्टम का मोमेंटम इज स्टिल द सेम. इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखते हैं इस केस में m1 u1 प्लस ऑफ m2 u2, दैट इज द सम ऑफ द टू मोमेंटम ऑफ द बॉडीज is equal to the final momentum m1 v1 plus of m2 v2, and this is known as conservation of linear momentum. अब conservation of linear momentum मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुने. In the absence of any external force, the linear momentum of the system remains conserved. This is known as conservation of linear momentum. और याद रखिए कि बार बार मैं सिस्टम वर्ड यूज कर रहा हूं, इंडिविजुअल बॉडी में यूज नहीं कर रहा हूं. ठीक है? अब ये इक्वेशन अभी हम यूज करेंगे अभी कोलिजन में, है ना? अब सुनिए बेटा, ये जो प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ ऐसा कोलाइड कर गई, जिसको वी आर कॉलिंग इट एज कॉलिजन, ये बेसिकली कॉलिजन तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलिजन. दीज कॉलिजन्स आर, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन, दूसरे को हम कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन, और थर्ड वन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन. कॉलिजन में पहला है इलास्टिक. आई विल डिफाइन ईच ऑफ देम इंडिविजुअली, डोंट वरी अबाउट इट. दूसरा है इन इलास्टिक, एंड द थर्ड वन इज परफेक्टली इन इलास्टिक. ये 3 तरह के कॉलिजन्स हैं. अब इन तीनों की मीनिंग हम समझते हैं. इन तीनों की मीनिंग क्या है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है ऐसा कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. ठीक है, मोमेंटम P से हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो P रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट, P ऑफ द सिस्टम, राइट?
इन इलास्टिक में भी सर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इनफैक्ट मैं परफेक्टली इन इलास्टिक की भी बात करूं तब भी मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तीनों में ये एक चीज सेम रहती है, मतलब मोमेंटम का कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल इन ऑल दीज थ्री कैटेगरीज ऑफ कोलिशन, वेदर इट बी इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस सर? यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन एज इट इज। मतलब जो Okay. इनिशियल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ऑफ कोलाइडिंग बॉडी और जो फाइनल सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ऑफ दोस कोलाइडिंग बॉडीज, दैट हैज टू बी कांस्टेंट। तो ऐसा कोलिशन इज नोन एज इलास्टिक कोलिशन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड केस इज कि इन इलास्टिक का क्या मतलब होता है? इन इलास्टिक का मतलब होता है कि ऐसा कोलिशन जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट और यू कैन से कंजर्व्ड। तो अगर इफ देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज नॉट कांस्टेंट, तो इस कोलिशन को अपन इन इलास्टिक कोलिशन कहेंगे। ठीक है। द Okay. लास्ट वन इज perfectly inelastic collision. इसमें भी kinetic energy is not constant. Kinetic energy of colliding bodies doesn't remains constant. मतलब इसमें भी there is a loss of kinetic energy. In fact, मैं अगर कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि the maximum loss of kinetic energy takes place in this case, which is called as perfectly inelastic collision. ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखें तो inelastic और perfectly inelastic looks like same, कि भाई दोनों में मोमेंटम कांस्टेंट है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक? तो एक बात समझ लो बेटा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन इज द स्पेशल केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिशन। इन इलास्टिक कोलिशन का स्पेशल केस है। क्या स्पेशल है इसमें? व्हाट इज दिस स्पेशलिटी? तो स्पेशलिटी ये है इसमें कि आफ्टर कोलिशन colliding bodies will move with same velocity. Colliding body जो होगी वो कैसे मूव करेगी? They will move with the same velocity. Colliding bodies will move with same velocity. Did you understand? Yes, sir. देखो आपके बुक्स में लिखा होता है कि आफ्टर कोलिशन द टू बॉडीज विल स्टिक टुगेदर। ये जरूरी नहीं है, दे कैन आइदर स्टिक टू ईच अदर और दे कैन नॉट स्टिक टू ईच अदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल यू थ्रो सम मड ऑन अ कार, तो मड एंड दैट कार विल गेट स्टक, राइट? तो दिस इज द केस ऑफ इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। बट ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर कोलिशन द टू बॉडीज गेट स्टक टू ईच अदर, दे कैन और दे कैन नॉट, बट द रिक्वायर्ड थिंग इज कि कोलिशन के बाद देयर वेलोसिटी शुड बी सेम, आइदर दे स्टिक और डोंट स्टिक, डजंट मैटर। ठीक है, वेलोसिटी सेम हो जाए। इन इलास्टिक में कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अगर सेम हो गई तो उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे। क्लियर है? डिड यू नोट ऑल दिस थिंग्स? Yes, sir. ठीक है, मूविंग ऑन। तो अब हम जो हमें मेन डेरिवेशन करना है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज इलास्टिक कोलिशन, द डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक कोलिशन। तो इलास्टिक कोलिशन का डेरिवेशन हम करेंगे। डेरिवेशन का मतलब कि वी विल find or derive a formula of the velocity of the two colliding bodies after collision। मतलब collision के बाद दो colliding body की जो velocity होगी वो क्या होगी, that we will find out। ठीक है, वो हम find out करेंगे। यही हमारा derivation है। तो देखिए इसके लिए आप ऐसा imagine कर लीजिए कि this again I am taking the same कि m1 moving with u1, there is another body of mass m2 which is moving with a velocity of u2 such that u1 is greater than u2, and then after the collision what happens, their masses obviously will not change, but their velocities will become v1 and v2 after the collision। ठीक है। now the point is, ऐसा आप imagine करो कि you know initial velocities of the body but you don't know the final velocity of the body, so we are going to derive a result जिससे हम final velocity of the colliding bodies find कर सकते हैं। that is what we are going to do। तो देखो अच्छा याद रहे कि this what we are doing is for elastic collision, मतलब this formula that we are going to derive now will be applicable only to elastic collision, it will not be applicable to any other collision।
तो अभी हमने पढ़ा है कि वेदर इट बी एनी कॉलिजन, एक बात तो सब में कॉमन है कि मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। और क्यों कंजर्व रहेगा? बिकॉज ड्यूरिंग कॉलिजन ओनली द टू बॉडीज आर कोलाइडिंग एंड दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन वन अनदर, देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन कोलाइडिंग बॉडीज, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो m1u1 प्लस ऑफ m2u2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू m1v1 plus of m2v2, that is the sum of momentum before collision and the sum of momentum after collision remains constant. Yes, sir. ठीक है, this is my one of the equation. इसको थोड़ा सा मैं rearrange कर लूं तो even I can write this as m1 u1 minus of v1 is equal to m2 v2 minus of u2. Did you understand how did I rearrange this? Yes, sir. मैंने वन वाले टर्म को एक साथ कर दिया, टू वाले को एक साथ कर दिया, तो दिस इज वन ऑफ द सेकंड इक्वेशन दैट वी हैव गॉट। अब एक और चीज है बेटा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन, तो इसमें एक और चीज अपने को पता है कि इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिशन काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब वी कैन राइट दिस एज हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m2u2 स्क्वायर्ड is equal to half m1 v1 square plus of half m2 v2 square, right? तो इसको भी थोड़ा रीअरेंज करेंगे, हाफ विल बी कैंसल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, तो इसको हम लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लो, तो दिस कैन बी रिटन एज v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर। इसको अच्छा बेटा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बचपन में हमने एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी? तो इफ आई जस्ट ब्रेक दिस इन दैट ऑन दैट फॉर्मूला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ u1 प्लस ऑफ v1 इंटू u1 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 एंड आई जस्ट मेड अ मिस्टेक हियर, ये v2 u1 माइनस ऑफ v1 है ना, ये u2 v2 माइनस ऑफ u2 है, ठीक है, करेक्ट है? ये u2 को हम उस साइड पे लेके, तो v2 प्लस ऑफ u2 इंटू v2 माइनस ऑफ u2, ठीक है, ये ऐसा कुछ आ रहा होगा, मान लो दिस आई एम कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको करना कुछ नहीं है, यू जस्ट डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 2। कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगर आपने नोट कर लिया, ठीक है, तो डिवाइडिंग 3/2, तो आप क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस ऑफ v1 इंटू u1 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस ऑफ u2 इंटू v2 प्लस ऑफ u2, एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय इक्वेशन नंबर 2, तो एंड दैट वाज m1 u1 माइनस ऑफ v1, और इधर आ जाएगा आपका m2 v2 माइनस ऑफ u2। आई थिंक दिस वाज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो? यस सर। ठीक है, तो यहां से सर m1 u1 माइनस ऑफ v1 m1 u1 माइनस ऑफ v1 कैंसल्स आउट, m2 v2 माइनस ऑफ v2 ये कैंसिल हो गया, तो वी विल गेट u1 प्लस ऑफ v1 इज इक्वल टू v2 प्लस ऑफ u2। यहां से आप v1 को ऐसे भी लिख सकते हो v2 प्लस ऑफ u2 माइनस ऑफ u2, ठीक है, माइनस ऑफ u1, राइट? यहां तक क्लैरिटी है? अब पुट v1 इन इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, m1 u1 प्लस ऑफ m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1, इन प्लेस ऑफ v1 आई राइट v2 प्लस ऑफ u2 माइनस ऑफ u1, ठीक है, और ये क्या था m2 v2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो अब देखो m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2, आई नो u1 आई नो u2, यहां पर अगर आप देखें ऑन द राइट साइड आई हैव ओनली वन अननोन विच इज v2, ठीक है, तो v2 को हम निकाल सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, m1 v2 प्लस ऑफ m1 u2 माइनस ऑफ m1 u1 प्लस ऑफ m2 v2, अदर देन v2 टर्म्स टेक द टर्म्स टू द लेफ्ट, v2 वाले टर्म को एक साथ रख दो और बाकी टर्म्स को यू टेक इट टू लेफ्ट। लिख लिया आपने यहाँ तक? नो सर, सर जस्ट अ सेकंड। ओके,
Yes, sir. Is it done? Yes, sir. Okay. So we can further simplify this to get the final result of V1 or V2, whatever. तो अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम इसको रीअरेंज करें फिर से, तो M1 V1 प्लस ऑफ M1 V1, Sir, it's M2, M1 U1. yes, thank you. So this will be M1 U1 प्लस ऑफ M2 U2, और बाकी टर्म्स को इधर ले आएंगे, Yes, तो sir. दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ M1 U2, और ये वाला टर्म ले आए तो प्लस ऑफ M1 U1 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म में V2 कैन बी टेकन एज कॉमन, तो M1 प्लस ऑफ M2. इसको फाइनली आप देखो क्या लिख सकते हो, V2 कैन बी रिटन एज M1 U1 प्लस ऑफ M1 U1 कैन बी रिटन एज 2M1 U1. इन दोनों में यू कैन टेक U2 एज कॉमन, तो यू विल बी लेफ्ट विद M2 माइनस ऑफ M1 Yes, sir. डिवाइडेड बाय M1 प्लस ऑफ M2. ये थोड़ा सा अजीब सा, बट दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द V2. सर अगर मुझे V2 आ गया तो V2 हम किसी भी एक इक्वेशन से फिर V1 निकाल सकते हैं, बट आपको इसको शो करने की कोई जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू शो इट अगेन. आप तो सिंपली इस बात को याद रखो कि इफ यू रिमेंबर वन फॉर्मूला यू कैन राइट द अनदर फॉर्मूला. कैसे? अगर मुझे V1 निकालना है तो आई विल जस्ट चेंज द सबस्क्रिप्ट, जहां पर 1 है वहां पर 2 कर दूंगा, तो इसका मतलब M2 U2 प्लस ऑफ U2 था तो इसको U1 कर लीजिए, ये M1 माइनस ऑफ M2 कर लीजिए. नीचे अगर आप M1 को M2 और M2 को M1 करेंगे तो भी देयर विल बी नो डिफरेंस एज सच, तो ये M1 प्लस ऑफ M2 ही रह जाएगा. तो दिस इज द वेलोसिटी. Okay, sir. Sir, done. ठीक है. Hello. यस यस आई कैन हियर Sir, यू. done. ओके, तो दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. इसमें एक और चीज आपसे मे बी दे कैन आस्क यू related to this collision, which is coefficient of restitution. Coefficient of restitution. It's just a formula. The another name to this is also Newton's formula. इसको हम Newton's formula भी कहते हैं. Simply it is called as Newton's formula. Coefficient of restitution. Newton's formula. ठीक है. अब ये Yes, क्या sir. होता है? It's just a formula. और इससे फायदा क्या है? What is the benefit of this? कि आप को अगर ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू पता है तो यू कैन डिसाइड द टाइप ऑफ कॉलिजन. क्या मतलब सर? देखिए, इसके लिए फिर से आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला है क्या. बेसिकली इट्स जस्ट अ फॉर्मूला, सो देयर इज नो डेफिनेशन फॉर दिस. आप तो बस फॉर्मूला समझिएगा एंड दैट इज द डेफिनेशन इटसेल्फ. तो ये मान लीजिए U1 सर, ये मान लीजिए U2, और आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज बिकम्स V1 एंड V2. Hmm. मान लो बेटा कि बिफोर कोलिजन दिस U1 वाज अप्रोचिंग U2, मतलब U1 वाज ग्रेटर देन U2. तो आप इमेजिन करो कि अगर U1 U2 से ग्रेटर है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि U1 इज अप्रोचिंग U2, मतलब द सेपरेशन Yes, बिटवीन sir. U1 एंड U2 विल बी डिक्रीजिंग ऑफ कोर्स, राइट. और मान लो कि लेट्स से कि आफ्टर कोलिजन V2 बिकम्स ग्रेटर देन V1. V2 Okay. V2 becomes greater than V1, मान लो लेट्स से. तो अगर आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है देन दैट ऑफ द पीछे वाली बॉडी, तो आपको नहीं लगता कि द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज विल इंक्रीज विद द टाइम? Yes, sir. इसका मतलब, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि इट विल फील लाइक कि अगर ये सेपरेशन इनका इंक्रीज हो रहा है, इनका सेपरेशन, अगर इनके बीच का सेपरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सेपरेट होती हुई दिखाई देगी. It will appear that the two bodies are separating from one another. Yes, sir. ठीक है. तो ये अगर सेपरेट हो रही है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम डिफाइन कैसे करते हैं उसको सुनिए.
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन relative velocity of approach, and this coefficient of restitution is represented by small e. ठीक है, और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? तो relative velocity of separation, इसका मतलब है difference of these two velocities, v2 minus of v1, and relative velocity of approach मतलब u1 minus of u2 is basically coefficient of restitution. This is the formula for coefficient of restitution. Okay. ठीक है, Yes, अब sir. इसको how will you decide the type of collision from this coefficient of restitution that I'll tell you. नोट कर ले इसको. Sir, done. Okay. अब देखिए coefficient of restitution if its value is 1, इसका मतलब है relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach, and such a collision is called as elastic collision. ये जो इस Sir, तरह please की repeat. फिर से बता देता हूँ, इस तरह की जो कोलिजन होगी जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, ठीक है, सच दैट, इसका क्या मतलब हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, दैट मींस वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह सकते हो आप, दैट इज v2 माइनस ऑफ v1 जो न्यूमरेटर है, एंड u1 माइनस ऑफ u2 जो डिनोमिनेटर है, वो इक्वल है. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह का जब भी collision होगा in which the relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach, that is E is equal to 1, तो इस तरह की collision को अपन कहते हैं elastic collision. These kind of collision is known as elastic collision. मतलब elastic collision के लिए small e की value 1 होती है. Okay. उसके बाद दूसरा है e की value अगर exactly 0 हो जाए, ठीक है, और e की value 0 कब होती है मैं बता देता हूं आपको, when v2 minus of v1 becomes equal to 0. और ये v2 minus v1 कब 0 होगा? जब v2 is equal to v1. अब सोचो मैंने किस कोलिजन में ये बोला था कि आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज विल बिकम सेम. ऐसा कौन सा Perfectly कोलिजन? perfectly inelastic. तो दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक. Yes, sir. Yes, sir. तो सर अब एक और चीज पे आते हैं. अगर इफ द वैल्यू ऑफ e इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो फॉर दीज ऑल वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, this collision will be called as inelastic collision. This will be called as inelastic collision. Okay. ठीक है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई अंशिका कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैन नेवर बिकम नेगेटिव. e की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. और इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है. मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है. ठीक है, ये मतलब है इसका. ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ कोलिजन. इसके बाद एक और चीज पे जरा से मैं डिस्कशन करता हूँ, फिर उसके बाद हम आपके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन से चैप्टर को डील करना है. कैन आई इरेज? Yes, sir. Okay. The next thing that we are going to discuss is power. और आपको कुछ आइडिया भी ऑलरेडी होगा व्हाट इज अ पावर और मैकेनिकल पावर. आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल पावर ऑब्वियसली बिकॉज ऑप्टिकल पावर भी होता है. तो ये तो अभी मैकेनिकल पावर की बात करें, ऑप्टिकल पावर आपको क्लास 12th में बताया जाएगा. पावर का बेसिक मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट वर्क. कितना वर्क आपने किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में आपने ये वर्क किया. द टाइम वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एज पावर. ठीक Yes, है, sir. इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है वॉट. SI यूनिट इज वॉट. 1 वॉट का मतलब है कि इफ यू परफॉर्म अ वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड, तो दिस पावर इज कॉल्ड एज 1 वॉट. ठीक है, Yes, sir. देयर इज अदर यूनिट आल्सो फॉर द पावर. जैसे अगर मैं लिख दूं किलो वॉट, KW स्टैंड्स फॉर किलो वॉट, तो किलो वॉट का मतलब हो गया 10 to the power 3 वॉट. हॉर्स पावर भी इसकी यूनिट होती है HP. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. ठीक है, अच्छा ये जो पावर मैंने लिखा दिस इज एवरेज पावर. अगर इसी में इंस्टेंटेनियस पावर कह दे, इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो यही पावर आप लिखेंगे dW/dt. दिस विल आल्सो बी द फॉर्मूला फॉर पावर, बट दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है एट एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या एट एनी पर्टिकुलर टाइम.
ठीक है, और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट दिस पावर इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, इससे मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सोचो, वर्क डन इज रिटन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एम आई राइट? Yes, sir. तो इसका इसका मतलब बेटे कि वी कैन इवन राइट दिस क्वांटिटी आल्सो एज, देखो, अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हो तो योर फोर्स माइट बी चेंजिंग, हो सकता है कि आपका फोर्स वेरिएबल हो, बट अगर आपने बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, बहुत स्मॉल, फॉर एग्जांपल Hmm. यू हैव टेकन द वैल्यू ऑफ टाइम टू बी 0.0000001 सेकेंड, so for that very small interval of time, can I treat this force as a constant? Although it may be variable, but मैंने टाइम बहुत छोटा लिया है ना, तो अगर मैंने टाइम बहुत छोटा लिया है तो फॉर दैट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल मैं इस फोर्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो मैं इसको एज इट इज रहने दूं, तो मैं लिख सकता हूं एफ डी एक्स बाई डी टी, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट अनडाउटेडली। तो मुझे एक Yes, बात sir. आप बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस क्वांटिटी? Speed. वेलोसिटी। Velocity. Yes, sir. इसका मतलब P इंस्टेंटेनियस की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? P इंस्टेंटेनियस की वैल्यू को हम F इंटू वी भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द पावर। पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। Okay. और याद रखिएगा दिस फोर्स हैज टू बी एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, और पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा कुछ आ जाए तो आप यार इस बात को भी याद रखेंगे कि दिस इज एफ डॉट वी, Hmm. ठीक है, क्योंकि द Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर वन, तो इसलिए आप इसको एफ डॉट वी भी लिख सकते हैं। Okay, sir. ओके, तो दिस इज अबाउट पावर कोलिशन। अब बताओ और कौन सा चैप्टर आपने पूछा स्कूल वालों से? Sir, just a second. Let me check the weightage. ओके, The gravitation. चलिए, ग्रेविटेशन में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज ये क्लास 9th का टॉपिक है, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दैट। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं या जो आपसे पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट इज वेरिएशन ऑफ ए स्मॉल जी, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तीसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है दैट इज escape velocity, and the last thing that can be asked in your exam is Kepler's laws। ये कुछ टॉपिक्स हैं इस ग्रेविटेशन चैप्टर में जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जा सकते हैं, जिसके डेरिवेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट यस, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये सब 9th में पूछा जाता है। तो हम इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जो सबसे पहला जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका नाम है स्मॉल जी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ इट वेरीज विथ हाइट और विथ डेप्थ और ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी। बट उससे पहले
आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। तो बेटे आपको एक बात पता होगी कि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ हमेशा हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो अट्रैक्ट करता है with a force, and if there is a force, so then there will be an acceleration. So the acceleration with which earth attracts a body towards its center, that is basically called as acceleration due to gravity. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, the acceleration with which a body is attracted towards the center of the earth, that is basically called as acceleration due to gravity. ठीक है? अब देखो अर्थ सरफेस के लिए अगर सबसे पहली बात, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी और व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहले हम इस बात को समझें। तो मान लीजिए दिस इज अर्थ, और अब अगर अर्थ मान रहे हो तो अर्थ को हम बेसिकली वी ट्रीट इट एज अ सॉलिड बॉडी, ठीक है, नॉट एज अ हॉलो बॉडी, इट्स अ सॉलिड स्फीयर, वी कंसीडर इट लाइक अ सॉलिड स्फीयर। मान लो कि इस अर्थ का जो रेडियस है वो r है, और इमेजिन करो कि आपने किसी पार्टिकल को जिसका मास स्मॉल m है, यू हैव जस्ट प्लेस्ड इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमें एक बात मालूम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इतना आइडिया आपको होगा कि व्हेनेवर यू कीप द टू बॉडीज, ठीक है, तो द टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आपको मालूम है ना कि दो बॉडी या दो मासेस को हम कहीं पर भी प्लेस कर दें तो देयर विल ऑलवेज बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, and that force of attraction will be called as gravitational force of attraction. Am I right? Yes, sir. अब देखो, अर्थ इज अ वेरी बिग बॉडी, इट्स अ ह्यूज बॉडी, है ना, इट्स अ रिजिड बॉडी। तो अर्थ का मास हम कहां पे अज्यूम करेंगे इन while calculating the gravitational force between the earth and this particle which is kept on the surface? देखो सरफेस पे हमने पार्टिकल रखा है, तो इफ दिस इज अ पार्टिकल, तो पार्टिकल के लिए तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल का पूरा मास तो उसी पॉइंट पर है, बिकॉज पार्टिकल का मतलब होता है ऐसी कोई भी बॉडी जिसका साइज नेग्लिजिबल है, तो इसका तो पूरा मास उसके पॉइंट पर है, सो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। अर्थ का हम पूरा मास कहाँ पे मानेंगे, तो नॉट ओनली फॉर अर्थ, आप हमेशा याद रखो कि व्हेनेवर यू हैव अ स्फेरिकल बॉडी, assume the whole mass of that spherical body at the center while calculating the gravitational force. Did you understand? Okay. कभी भी स्फेरिकल बॉडी हो, स्फेरिकल बॉडी कहीं पर भी हो, तो आप उसका पूरा मास उसके सेंटर पे अज्यूम करेंगे। तो आप Sir, but देखिए, why do we do this kind of assumption? we don't take this assumption, we solve it completely and then we have got this result कि अगर हम इस पूरे स्फीयर को, if I replace it by a single point mass kept at its center, so it will have the same effect as of the whole sphere. That is why we simply say that the total mass of the sphere can be placed at the center. Okay. ठीक है, ये हमने ड्राइव करके देखा हुआ, तो यू डोंट नीड टू शो इट बाय द डेरिवेशन, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि वो आपको डेरिवेशन वो आपके लेवल में होता नहीं है, तो इसलिए बस ये रिजल्ट आप याद रखें। ठीक, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं, ऑल्दो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा कहना, बट फिलहाल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि स्फीयर, देखो एक चीज होती है जिसको आपने सुना होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब ऐसा पॉइंट इन द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड टू बी प्लेस्ड, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? Yes, sir. खैर नहीं सुना है तो जाने दो। स्फीयर है तो उसका पूरा मास आप कहाँ पे अज्यूम करेंगे, उसके सेंटर पे, बस इतनी बात याद रखिए। Okay. तो इसका मतलब इन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू gmm/r²। और आपने ये बचपन में भी देखा है ना आपने? Yes, sir. बाय द वे, व्हेन डू यू हैव योर एग्जाम? So from 2nd of March, and probably the last class I'll be taking tomorrow. F is equal to gmm/r², and Yes, F sir. is equal to gmm/r² है। अगर दूसरी बात हमें ये भी मालूम है, अकॉर्डिंग टू द सेम न्यूटन्स लॉज, कि फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सीलरेशन एज वेल, है ना? तो if I equate the two, because this is also the force and this is also the formula for the force, so they have to be same, right? So we can write mass into acceleration can be written as equal to gmm/r². This m cancels out. So this is the acceleration with which the body is being attracted towards the center of the earth,
and this acceleration is basically called as small g. इसी acceleration को अपन क्या कहते हैं? Small g, and this is written as gm by r square, where r is the separation between the particle and the center of the earth. G, you know, it's a universal constant. Capital M, you know, it's the mass of earth, and small g is acceleration due to gravity, right? This is the meaning of acceleration due to gravity. अब ये acceleration due to gravity vary चेंज करता है विद द हाइट एज वेल एज विद द डेप्थ. आप अर्थ सरफेस के ऊपर भी जाओगे तो चेंज करता है ये, और अर्थ के अंदर भी जाने लगोगे तो इट विल चेंज. तो इट चेंजेस अबव द अर्थ एंड इनसाइड द अर्थ. अब वो कैसे वेरी करता है, दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो हम जो यहाँ पर डिस्कस, इसको इरेज करता हूँ. यस सर. ठीक है, हम जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी with height. ठीक है, और 12th में ना, 12th में प्लीज शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, है ना. उसमें मतलब वेस्ट मत करिएगा टाइम, वरना बहुत दिक्कत हो. एनीवेज, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट. अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि आपका अर्थ, मान लीजिए फिर से इसकी रेडियस r, mass of the earth is m. I have no issue with this, but now I have kept the particle somewhere here such that this particle has been kept at a height of h from the surface of the earth. पहले हमने particle को exactly surface of the earth पे रखा था. Now this time I have placed the particle above the surface of the earth at a height of h. अब कैसे लिखूं? तो सर I know the formula कि at surface पे जो होता है, ठीक है, मैं सिंपली s लिख देता हूँ. s का मतलब आप समझ लेना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस. तो ये होता है gmm by r स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता. बट जब हमने हाइट पे रख दिया तो मास ऑफ द अर्थ तो वही रहा, कैपिटल G इज स्टिल सेम, बट व्हाट हैज चेंज्ड? ये This r has changed. r has changed. Now the separation is not only r, rather it is r plus h the whole squared. Yes, ठीक sir. है, ये तो आ गया हाइट पे स्मॉल जी का फॉर्मूला. अब अकॉर्डिंग टू द हाइट स्मॉल जी कुछ भी हो सकती है, बट हमें कंपेयर करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस एंड एट द हाइट. अगर मैं इसको कंपेयर करूं, हाउ वी विल डू दैट? तो इसके लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं कंपेयर कर रहा हूं जी एट हाइट डिवाइडेड एट सरफेस will be written as equal to gm upon r plus h the whole squared multiplied by r square by gm. Did you understand कैसे मैंने ये कर दिया? बिकॉज डिवाइड कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो साइड चेंज हो जाएगा. तो gm एंड gm विल कैंसिल आउट. इसका मतलब हाइट पे जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो होती है r अपॉन r प्लस h द होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल g एट हाइट. ठीक है, in terms of small g at surface, this is the formula of a small g at height. Done. अब देखो, इसी में थोड़ा सा हम इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वैसे तो दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला, बट विद सम अजम्पशंस. अगर हम कुछ अजम्पशन ले लें, इफ आई टेक द अजम्पशन एज के स्मॉल h which is the height is less than that of r. If h is less than that of r, मतलब the height to which you have taken the particle or the body is less than that of radius of the earth. तो उस फॉर्मूले को हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? तो उसको आप देखिए, gh इज इक्वल टू gs, ऊपर r स्क्वायर लिखा हुआ था, नीचे r प्लस h का होल स्क्वायर था. तो इसमें मैं r कॉमन ले रहा हूं, तो इसको मैं 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. टेल मी यस और नो. Yes, sir. इसका मतलब दिस कैन इवन बी रिटन एज gs r स्क्वायर्ड अपॉन r स्क्वायर इनटू 1 प्लस ऑफ h बाई r द होल स्क्वायर. राइट? Yes, पूरे sir. पे स्क्वायर होगा तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल. तो g at height will be equal to gs into this can be written as 1 plus h by r to the power minus 2. ठीक है? Okay. लेकिन ये रिजल्ट ऐसे सॉल्व तो नहीं होगा. अब इसमें एक चीज यूज करते हैं हम जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन.
अगर कहीं पर लिखा हो 1 + x to the power -n, तो इसको एक्सपैंड करके वी कैन राइट इट एज 1 - of nx, प्रोवाइडेड कि 1 is greater than x। अगर कभी भी इस फॉर्म का लिखा हुआ आपको दिखाई दे और उसमें आपको ये भी दिखाई दे रहा हो कि 1 is much greater than that of the another quantity, तो आप इसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं हाइट मैंने 10 मीटर ले लिया और रेडियस ऑफ अर्थ एक्चुअली में 6400 किलोमीटर होता है। सर यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, आई रिपीट इट अगेन। हाइट आपने कितना ले लिया अंशिका? हेलो सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। इज इट नाउ क्लियर? अंशिका, hear me now? Yes, sir. But still there is some ये disturbance देखो, from your side. ये डेटा देखो पहले, ये डेटा h और r कंपेयर करो। h by r 1 के कंपैरिजन में विल इट बी स्मॉलर और विल इट बी ग्रेटर? So smaller. और बहुत ज्यादा, नॉट ओनली स्मॉलर बट इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। मतलब कैन आई अप्लाई दिस हियर? Yes, sir. This is also the formula for a small g. Okay. बट ये assumption के साथ है, when height is much smaller then only you can use this। और जो पहले वाला फॉर्मूला है वो आप कभी भी यूज कर सकते हो। There is no assumption in that. That's the real value formula. Okay. हो गया? Sir, just a second. Yes, sir. Okay, तो we'll complete this tomorrow, right? कल इसको complete करते हैं। Sir, I have a doubt. Yes. So, in case of differentiation, for example, if y is equal to cos x, so means अगर ये differentiation आया है y का, hello, हाँ हाँ हाँ, I'm listening. बोलो। so अगर differentiation का आंसर आया है cos x, for example, तो it means y की वैल्यू cos x से चेंज हो रही है। हाँ, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज एग्जैक्टली कॉस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन x, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम cos x आएगा। इसका मतलब है साइन x विल चेंज अकॉर्डिंगली cos x। वैसे भी आप सोचो साइन x चेंज होता है तो cos ही तो बनता है, साइन 90 प्लस थीटा। मींस जो ये वैल्यू है y में ऐड होती है या मल्टीप्लाई होती है? y में ऐड और मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। आपने ये y लिया और y is equal to cos x. This is what you are trying to ask? Yes, sir. Oh, sorry, sir. If y is equal to sin x, then differentiation is cos x. Yes, of course. Then differentiation is cos x. इसका मतलब dy by dx is equal to cos x. Means if I'll change sin x, ठीक है, sin x की वैल्यू को मैं चेंज करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? cos x बन जाएगा।
So means ये समझ नहीं आया. मतलब सोचो sin 90 plus theta, have you heard this? sin 90 plus Yes, theta sir. is cos theta or not? Yes, sir. But तो minus cos theta. sin 90 plus theta, sin 90 minus theta is plus cos theta, कुछ भी हो सकता है ना, माइनस cos theta और प्लस cos theta whatever. वो तो डिपेंड करेगा कि यू आर गोइंग इन विच क्वाड्रेंट. वहां यहाँ पर आपने थीटा को डिफाइन नहीं किया ना बेटा. डिड यू डिफाइन द थीटा हियर? No. नो. तो इट कैन बी एनीथिंग, राइट? Okay. तो इसीलिए माइनस या प्लस का वहां पर ये नहीं आएगा. वैसे एक बात याद रखो, दिस इज नॉट बेसिकली बाय दिस लॉजिक. ये इसका जो एक्चुअल लॉजिक है दैट विल बी टॉट टू यू इन मैथमेटिक्स. जो मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिमिट वगैरह आएगा. Yes, sir. तो उसमें आपको एक्चुअल इसका लॉजिक समझ में आएगा. बट फिलहाल अभी ये समझ लो कि साइन अगर चेंज होता है, साइन का वैल्यू अगर इफ इट चेंजेस तो इट विल कन्वर्ट इनटू कॉस, और कॉस अगर चेंज होता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू साइन. Okay, sir. ठीक है? ओके. Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग.